though you all are teachers, so I welcome you all on this virtual platform in a discussion that is based on the topic that actually supports the quality and transformation in higher education. The topic is academic leadership. We are in the academic fraternity for the exchange of knowledge. And what the knowledge is, how significant it is, there is a Sanskrit sloka which mentions that Vidya dadati vinayam, vinayat yati patratam, patratvam dhanam apnot, dhanam prapnot sukham. इस पृथ्वी पर जो कुछ है, हम और आप अल्टीमेटली सुख की बात करते हैं। वो भौतिक सुख हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल सुख भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरह के जो सुख हैं, इनको प्राप्त करने का जो एक तरीका है, वो तरीका क्या है? विद्या। विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही आपको विनय प्राप्त होगी। विनयात याति पात्रताम, विनय से आपको योग्यता प्राप्त होगी। एंड पात्रत्वम धनम आपनोत, उससे धन प्राप्त होगा। एंड धनम प्राप्नोत सुखम, उसी से आप सुख प्राप्त करेंगे। क्योंकि कुछ सुख, जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो स्पिरिचुअल सुख है, आध्यात्मिक सुख जो है, वो धन के बिना भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन विद्या के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो ट्रू नॉलेज, that Sanskrit sloka means that true knowledge grants humility, and from humility it comes the worthiness. So in this academic fraternity, as teachers, we are not just the custodians of knowledge, we are also the agent of transformation and leadership. Because the academic world is rapidly evolving, and with this evolution, it comes a host of challenges and responsibilities for those in leadership roles. So let us explore the things, what this academic leadership means. So before going to the academic leadership, I would like to invite few of you that please express your opinion on leadership. What do you understand from the word leadership and the academic leadership? Please come forward. Sir, I am Dr. Raghuraj Singh from Bagpat. Ji Raghuraj ji. Leader is that who knows the wage and for the wage and go the wage. Exactly. And performing these activities, the person who is known as leader, and the ability of doing these function is known as leadership. Great. Anyone else, please? सर लोगों के व्यक्ति संगठन या समूह में कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करा देना ही लीडरशिप है। समूह में कार्य करने की योग्यता को उत्पन्न करा देना ही लीडरशिप है। बिल्कुल ठीक। और कोई कुछ कहेगा? हेलो हेलो sir, according to me, leadership, all leaders should have an inspiring vision and clear and inspiring vision and selfless services to the others. And it is also related to empowering others. Empowering others. It should be yes, sir. It should be empower. Okay, fine. So you all are well versed with the word leadership. But when it comes to academic leadership, it changes little bit. Why it changes little bit? When it comes to leadership, to lead any group, that is, as per my opinion goes, it is very easy to lead a group.
other than an academic team. I will discuss it later during this presentation, during this lecture, that there are different type of leadership. And in other groups, you can use any one theory of leadership, and you can do your job. You can perform your job. But in academic leadership, you can't do with one theory. You have to be well versed with all the theories of leadership, and then only you will be able to do the academic leadership. Because an academic leader is not only the academic leader, it is all simultaneously it is an he or she is an administrative leader also. Okay, so because academics and administration are the indispensable part of any academic institution. Okay, fine. You all are well versed with the terminology, but let me show the things. This is the outline of my lecture. I am coming to the leader and leadership. So you have already said that a person who is capable to inspire the human resources, he may be a leader. The person who not only meets the current targets and objectives, but also modifies the existing one. That means a person who is capable of transformation, transforming the things, transforming the processes, transforming the quality of the educational institutions or any organization, is also called as leader. A leader is a person who can focus on building and developing the organization, group, or nation. This is the definition of the leader. But what about the leadership? Leadership is a process in which a person, as Madam said already, inspires and motivates the people to meet the shared goals. It connects the people beyond a superficial or formal level and creates a bond that motivates them to do things rather than forcing them. If you like to define this in another way, in very simple words, I would like to convey that rather than collaboration, a leader should focus on compassion. If you will be deeply connected for a particular goal with your whole team, obviously the whole team will perform better. If you focus on collaboration, there is possibility that some team members, they may not be involved. Let's see the views of different eminent personalities on the leadership. So, starting with this Tecumes, he said, "Show respect to all people, but grovel to none." This is the statement for the good leader. Steve Jobs, you all know who is Steve Jobs. According to him, innovation distinguishes between a leader and a follower. Who is well versed in innovation, who is an innovation leader, he can lead a group, he can lead an organization. Warren Bennis, leadership is the capacity to translate vision into reality. Because followers can't do that. Followers can only follow the instructions. It is the leader who can have the vision for translation of vision into reality. Let's see, Wilma Mankiller. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. So these are the statements, and these statements, later you will see, these are correlated with the different theories of leadership. Aristotle, the great philosopher, he who has never learned to obey cannot be a good commander. Commander means, इनका मीनिंग यहाँ पे कमांडर से लीडर से है. Okay, John F. Kennedy, leadership and learning are indispensable to each other. आते हैं कुछ इंडियन थॉट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए. इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में जो बात कही गई, द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज विद्यादान. मैंने इनिशियली आपको लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया कि विद्या ददाति विनयम विनयाति यात पात्रताम
तो इंडियन ट्रेडिशन, जो इंडियन फिलोसफी है, उसके अकॉर्डिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज विद्यादान, दैट इज गिफ्ट ऑफ नॉलेज which multiplies as it is shared. So if you are a leader, you should transfer, you should give your knowledge to your team members. I'm not talking about the followers. I'm not going to use the word followers. The best form of the leadership is Vidyadan, that is gift of knowledge. Fine. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, former President of India, according to him, the purpose of education is not just to fill the minds, but to liberate them. It means the leadership should also follow the same principle. Coming to Dr. APJ Abdul Kalam, again the former President of India, the missile man, true leadership in education is not in commanding the students to learn, but it is in inspiring them to question. जो रघुवीर जी सिंह जी ने बात कही, इट इज अबाउट इंस्पायरिंग देम. ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें कि वो क्वेश्चन पूछें. अगर आप उनको क्वेश्चन पूछने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट ए ट्रू लीडर. रॉबिन शर्मा, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ टाइटल और अ डिजिग्नेशन. इट इज अबाउट इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन. Impact involves getting results. Influence is about spreading the passion you have, and you have to inspire teammates and customers. So these are some views on leadership. And particularly when it comes to academic leadership, you have to deal with the, I think, most intelligent fraternity of the society. You have to deal with the students. And when it comes to leadership, it doesn't include only the position holders. It doesn't include only the vice chancellor, dean of the school, head of the department. No, sir. Being a teacher, you are the academic leader of your class. You are going to lead the group of students. So you have to inspire them, you have to motivate them, and you have to think of their professional development, personal professional development. Nowadays, National Education Policy 2020 is talking about holistic development. So what are the key roles of academic leaders? Okay. Key roles of academic leaders. These leaders play a pivotal role in shaping the institutional direction and culture. Obviously, their decisions directly influence the performance of the institution, including the faculty as well as students. This leadership is vital for institutional success. आप सब लोग जानते होंगे किसी यूनिवर्सिटी में अगर विजिटर वाइस चांसलर को अपॉइंट करने में देरी करे, महीने 2 महीने भी देरी हो जाती है. तो कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है. बट महीने 2 महीने के बाद ही जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, उसमें थोड़ा सा एक प्रेशर बनने लगता है कि वाइस चांसलर क्यों नहीं आ रहे हैं, वाइस चांसलर क्यों नहीं आ रहा है. एक तरह की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है. ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीडरशिप कितनी जरूरी है, क्योंकि वो लीडरशिप ही है तो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है, स्टूडेंट्स के सोचने के तरीके को बदल सकती है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सोचने के तरीके को बदल सकती है. सो दिस लीडरशिप प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस amid the complex challenges. In short, good academic leadership underpins the quality assurance as well as innovation in the educational institutions. May it be university, may it be school, may it be college, anywhere. So if you have to maintain your academic standard, your leadership should be of good quality. According to Zalal and Murray, leaders
According to Zalal and Murray, positive institutional leaders are crucial for higher education success. So who will be the good academic leader? We are talking about good academic leader, good leaders, good leadership. So who will be the good academic leader? Who can be? So these are the different qualities that's there in simple words. The person who is going to lead an institution, who is going to lead an organization, he or she should be visionary. She should have mentoring capability, administration capability. He can be an agent of transformation, and he should be a good collaborator as well as compassionate person. अब किसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए. ये तो सिंपल में है जो सबको आ जाए. अब आप जो है थोड़ा सा इनको स्किल्स के फॉर्म में, कैपेबिलिटीज के फॉर्म में ले चलते हैं. तो लीडर्स शुड हैव द पर्सनल कैपेबिलिटी, इंटरपर्सनल कैपेबिलिटी, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, जेनेरिक कॉम्पिटेंसी एंड रोल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी. The figure has been borrowed from some research paper. I have not prepared it. The reference has been given. So personal capability includes the self-regulation, decisiveness, and commitment. Interpersonal capability, it includes the capability to influence and empathize the team members. Then cognitive capability, the capability to diagnose, capability to make strategies, capability to be flexible. If plan A is not working, we should go with plan B. We should always be flexible with that. And the leader should be responsive. He or she should have the feeling of responsiveness. Without that, he will not be able to lead. Then he should have generic competency. Obviously, he or she should have the knowledge about the day-to-day routine of the institution, the day-to-day operation, as well as self-organizational skills. Then role-specific competency. That means he should always be enthusiastic for learning. He or she should always be enthusiastic for teaching. So learning, as some of you have said, the learning and leadership goes hand in hand. Okay, so the learning should always be there. The person who denies to learn, he can't lead. So these are the details of these capabilities or capacities. There are some other skills, if I forgot to mention. Leadership skills are there. I have mentioned somewhere. The cognitive flexibility, decision making, conflict resolution, these are the skills that should be there in the leaders. Again, the same thing has been repeated here, I think. Visionary, mentor, administrator, change agent. So the same has been repeated here. Then coming to the theories of academic leadership. There are different theories of academic leadership. These are transformational, transactional, servant leadership, distributed leadership, and adaptive leadership. Transformational leadership is the leadership in which leaders inspire and motivate the team members by creating a vision. He creates a vision and asks the people that you have to achieve this vision. चलेंगे बाबा. How to achieve? You may have different ideas, you may have different approach to achieve that vision. He listens all those, but he focuses on that vision. And for achieving that vision,
this transformational leadership foster innovation and professional growth. Fine. Then another type of leadership is transactional leadership. In transactional leadership, the leadership focuses on the structured task. कुछ टास्क दे दिए, विजन नहीं बताया, कुछ टास्क दे दिए, you have to do this, you have to do this, you have to do this, you have to do this. Obviously उनके पास विजन है, लेकिन उन्होंने विजन शेयर नहीं किया, आपको बताया कि आपको ये करना है, आप ये करोगे तो आपको ये वाला रिवार्ड मिल जाएगा, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। यूजुअली इस तरह की लीडरशिप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है। ठीक है। तीसरी तरह की जो लीडरशिप है वो है सर्वेंट लीडरशिप। यहाँ पे लीडर जो है वो खुद को सर्वेंट के रोल में रखता है। दैट मीन ही ऑलवेज थिंक्स फॉर द बेटरमेंट, फॉर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ हिज टीम मेंबर्स। वो हमेशा कोलैबोरेशन के बारे में सोचता है, मेंटरशिप के बारे में सोचता है। विजन तो है उसका, ठीक है, लेकिन उस विजन के साथ साथ वो ये मान के चलता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, अगर उनका पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशन अपने आप ग्रो कर जाएगा। अनदर टाइप ऑफ लीडरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड लीडरशिप। यहाँ पर जो विजन है ना, वो भी लीडर नहीं बनाता, वो सारा का सारा विजन फॉर्मेशन भी शेयर्ड होता है, सारे के सारे टीम मेंबर्स को एक साथ इंक्लूड करता है वो, और पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होती है। डिसीजन मेकिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सब शेयर की जाती है अपने टीम मेंबर्स के बीच में। इट अलाइंस विद द शेयर्ड गवर्नेंस मॉडल एंड इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड कलेक्टिव इनोवेशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसी जगहों पर जहां आपको क्विक एक्शन लेना हो, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर लीडरशिप आपकी काम नहीं आएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर शेयर्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर शेयर्ड है, तो उसमें डिस्कशन में हमेशा टाइम लगेगा, क्विक डिसीजंस नहीं हो पाएंगे, दैट विल टेक टाइम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप हो गई। देन एडेप्टिव लीडरशिप इज देयर। एडेप्टिव लीडरशिप इज लीडर खुद भी कंटिन्यूली एडजस्ट करता है अपनी स्ट्रेटेजीज को लेकर के, किस लिए? टू मीट द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। जैसा अभी आप में से किसी ने कहा, लीडर इज द पर्सन हु नोज द वे, हु सोज द वे। ठीक है, एडेप्टिव लीडरशिप में ना नोज द वे है ना सोज द वे है, वो खुद ही एडजस्ट करता है अपनी स्ट्रेटेजीज को, आपसे भी पूछता है, जिस तरह की चैलेंजेस आते हैं उनको, उनके लिए कुछ इनोवेशन करता है और अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करता है, और आपसे भी करने को कहता है। ओके, तो ये 1 2 3 5 तरह की लीडरशिप थ्योरीज हैं। एक और थ्योरी आती है अथॉरिटेरियन लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो यूजुअली एकेडमिक सेटिंग्स में बहुत इफेक्टिव नहीं है, जनरली यूज नहीं होती है। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती है। वहां पे सिंपली आपका जो लीडर है वो आपको आदेश देता है और उसके बाद कहता है नो क्वेश्चंस। मतलब वो उम्मीद करता है आपसे कि नो क्वेश्चंस, कहता नहीं है नो क्वेश्चंस प्लीज। उसने ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, ठीक है, वो आपको फॉलो ही करना है। देयर यू विल बी ए फॉलोअर, मतलब टीम मेंबर्स विल बी ए फॉलोअर एंड लीडर विल बी ए लीडर। लीडर विल बी नॉट ए लीडर बट लीडर विल बी ए बॉस। तो ये है डिफरेंट थ्योरी। इनमें से कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है दैट जो हर सिचुएशन में काम आए। मैंने कहा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है कि इनमें से कोई एक थ्योरी फिट बैठ जाए, लेकिन एकेडमिक सेटिंग्स में इनमें से कोई एक थ्योरी फिट नहीं होती है। सो एकेडमिक लीडर्स शुड नो all the theories and he should practice all the theories, then only he will be a good academic leader. Contemporary issues क्या है आजकल के एकेडमिक लीडरशिप में, खास करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में? आप सब लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं?
sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let us have your views also. Yes, sir. क्या challenges हो सकते हैं इस समय के contemporary challenges क्या है higher education में? Being a teacher, आप में से कुछ लोग हो सकता है head of department हो, dean of the school हो, नहीं तो कम से कम टीम्स को लीड तो कर ही रहे होंगे, डिफरेंट कमिटीज को लीड कर रहे होंगे, तो आप लोग कुछ अपनी तरफ से लाइट थ्रो करें, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? Sir, day by day, respect to teachers slowly decreasing, sir. Respect to teachers is being decreased. Very good. By the society? In the society, na? Okay. Yes. Or good? Interference of management. Interference of management. ठीक है Dealing रघुवीर with- जी. Sir, dealing with students nowadays seems very difficult because they think that teachers are not required for any teaching purpose. This is a big challenge, sir. Teachers are not. Sir, Last part आपके sentence, teachers are not. due to availability or number of e-contents on the web, students know that then a plethora of contents in each and every subject is just a click away. Why should they listen to 45 to 50 minutes to a teacher? And they many a times they keep yawning. And most of the facts when we were telling them, they browse in their mobile and they talk to us in hand. And then say, okay, that very difficult to maintain the discipline in the class due to the e-resources, the number of e-resources, and many reels and influencers, they make many reels telling them where to browse for your particular field. That is why they know, most of them know everything. Earlier, the student used to listen to teacher very carefully because they were knowing that what the teacher is serving them or imparting knowledge to them is not going to be available to them easily. Now it's just a click away. That is why they are not much interested, and they think that we will learn this at our own convenience by lying on the couches, and whenever it will be required. They only come to class for attendance. ऐसा I got your point. मतलब ऐसा I got your point. I will discuss it. Thank you. Parveen. जी हाँ सर, अगर कोई कमेटी के कन्वेनर की बात हो तो पूरा काम कन्वेनर को ही करना पड़ता है। सब लोग जैसे आपको मालूम है मीटिंग में आप हो तो ठीक है, हम साइन कर देंगे बाद में, ये प्रॉब्लम होते हैं सर लीडरशिप में। क्लास की बात हो तो क्लास में हम जैसे मैनेज करते हैं बच्चे लोग वैसे मैनेज हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ एक रूरल एरिया है, तो वो लोगों का दिन का जो इनकम है वो बहुत कम है, तो बच्चे लोग आते ही नहीं क्लास में। जब आते हैं, जिन लोग आते हैं तो ठीक है, लेकिन मुश्किल है टीचर को लेकर। थैंक यू सर। ठीक है इरीन, I got your point. हाँ sir. Sir, 90% students are not come for learning, or they are not interested to learning. लेकिन जो उनको डिग्री देने का कंपल्सन है। ठीक है Government colleges. I have a अजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं। Are not able to take the full learning. अजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जी बताएं। Yes, sir. Especially in the government colleges, and the students are not interested in learning, and basically teachers are compelled to attend only to go to college, but students are not any compulsion for this. ठीक है, got the point. Shreya Das, please. Yes, sir. Actually, I'm from a rural college in West Bengal, and what the major problem I think is not with the students, it's with the socio-political situation that we are in, and there is lack of jobs. So the general education demand for general education is falling very fast. So we have
very few students attending. And another problem with our college is that they come from very far off and the transport system is not very good. So these are very technical infrastructural issues that we cannot deal with really. So these are the problems that I think I face. And one more problem I would say is, the lack of, whoever is the principal, he or she thinks that that person knows everything. So the problem is that there is lack of administrative accommodation for the other sections of the society. So there is a seminar or there is some other meeting going on, so classes get dissolved. So this kind of problems, we can't really complain totally about the student fraternity because they are young adults. So we need to look at ourselves and our administration and our society as well. This is what I feel, sir. Okay, got your point. Shreya ji. Okay, Thank you. let us reply one by one. I will start with Shreya Das ji because she has raised a very genuine issue she is facing, or the whole state is facing, I think. Regarding socio-political issue and transportation issue, I don't think there is any role of academic leader. There we can't do anything. That all depends on the governance as well as the political willpower. But still, being a teacher, what we can do, what the problem has been raised by Dr. Irene Parveen, that problem may be a weapon for Dr. Shreya Das. Excuse me, sir. Myself, Irene Parveen, sir. Irene, okay, sorry. So Irene said that the students are not attending the class because they know all the content, whatever is being delivered by the teacher, is just a click away and available on the web. So let this problem of Dr. shift or transfer it. Please transfer your problem to Dr. Shreya. So what she is facing, that students are not attending the class because they are not getting the transportation services. They are not feeling safe in coming to the colleges. So let them gain something from the resources available on the web. For that, what Dr. Shreya as academic leader or as a teacher can do, you have to just inform them where to search that available knowledge or the authentic knowledge. Or not knowledge, I will say that where to search that information and how to you can say how to get knowledge from that information, how to extract knowledge from that information. That Dr. Shreya can do. Now coming to Dr. Irene, and I think Dr. Raghubir has also raised, Dr. Aisha has raised the same question. Sir, Dr. Raghuraj Singh. Raghuraj Singh ji. जी, you all are mostly, अगर मैं आप तीनों के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को समराइज करना चाहूं, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा क्लास में नहीं आता है क्योंकि उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता है कि कंटेंट जो है वो अवेलेबल है वेब पर, हम जब चाहेंगे पढ़ लेंगे. अच्छी बात है सर. इसका मतलब ये हुआ कि the content being delivered in the classroom is less attractive than the content being delivered on the web. और साथ में एक और बात जो रघुराज जी ने जोड़ी कि 90% स्टूडेंट वो पढ़ने में ही इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है सर, 100% में 10% ही पढ़ने वाले होते हैं, 90% नहीं पढ़ेंगे. हमारा आपका काम 90 के 90% को पढ़ाना नहीं है. हमारा आपका काम ये है कि जो 10% पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाएं और कोशिश करें कि उस 90% में भी अगर 10-5% और पढ़ने के इच्छुक हो जाए, वो हमारी सफलता है. 100% को आप नहीं पढ़ा सकते, कोई नहीं पढ़ा सकता. ठीक है, हमने सबको ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के नाम पर हमने सबको इनरोल कर लिया. वो सब पढ़ेंगे, वो सब करने में इंटरेस्टेड होंगे जी नहीं. लेकिन बीइंग ए टीचर, आपकी कैपेबिलिटी इतनी तो होनी. Sir, sorry to interrupt you.
ऐसा से प्लीज सर हमारा मैं आप तक आऊंगा, आपका क्वेश्चन मैं फिर से लूंगा एक बार, मैं शायद मिस कर गया हूं, मैं फिर से लूंगा। तो रघुराज जी और आइरिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमें इतना कैपेबल तो होना चाहिए, क्लास में जाने से पहले इतनी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए कि बच्चे को ये लगे कि आज क्लास नहीं जाऊंगा तो कुछ तो कंटेंट छूट जाएगा जो सर या मैडम पढ़ाने वाले हैं, और वो वेब पर अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम आप भी वही डिलीवर कर रहे हैं जो वेब पर अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से हम अच्छे टीचर की कैटेगरी में तो नहीं आते। नंबर 1, ठीक है, बहुत कुछ आप डिलीवर नहीं कर सकते, ये भी सत्य है, बीइंग ए टीचर मैं जानता हूं कि बहुत सारा कंटेंट वेब पर अवेलेबल है, बट लेट अस डू सम इनोवेशन। नंबर 1। नंबर 2 जो आप कर सकते हैं, सर वेब पे मेंटरिंग अवेलेबल नहीं है, वेब पर उस स्टूडेंट को डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है। जो आपने कहा ना कि वो 90% इंटरेस्टेड नहीं है, श्रेया जी ने डायग्नोस किया कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने डायग्नोस किया। वो डायग्नोसिस की जो सर्विस है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्यों जाते हैं सर? एक फिजिशियन के पास, एक क्लिनिशियन के पास आप क्यों जाते हैं? सारे क्या कहते हैं डिजीजेज जो है वो सारी डिजीजेज की इंफॉर्मेशन वेब पे अवेलेबल है, डायग्नोसिस कैसे होती है वो भी वेब पे अवेलेबल है, ट्रीटमेंट क्या है वो भी वेब पे अवेलेबल है, डोज क्या है वो भी अवेलेबल है। आप क्लिनिशियन के पास क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? क्योंकि जो डायग्नोसिस का तरीका वो क्लिनिशियन का है ना, वो वेब पर अवेलेबल नहीं है सर। ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं लोग, सब लोग करते हैं क्या? प्रिफर करते हैं आप कि आप फिजिकली जाके डॉक्टर से मिलें। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात सुन लेता है। कोई आयुर्वेद का होगा तो आपकी नाड़ी पकड़ लेगा, कोई एलोपैथिक का होगा तो स्टेथोस्कोप लगा करके देख लेगा, आपकी परेशानी सुन लेगा, और परेशानी सुनते ही आपकी आधी परेशानी तो भाग जाती है। तो क्या बीइंग टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते? आप उस डायग्नोसिस की सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर सकते आप। इसीलिए एनईपी 2020 कहती है, मैं ऑडिबल नहीं हूं क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। तो टीचर्स का रोल ओके, टीचर्स का रोल जो है वो केवल क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं तो क्लासरूम के बाहर निकलिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए बेटा दिक्कत क्या है, क्या तुम सच में पढ़ना नहीं चाहते हो? घर वालों ने अगर जबरदस्ती भेज दिया है कॉलेज में, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तब तो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल उसको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो पढ़ना चाहता है, उसके साथ कुछ मुश्किलें हैं, तो उन मुश्किलों को डायग्नोस करिए, पढ़ना शुरू कर देगा, क्लास में आना शुरू कर देगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मेरा पर्सनल एग्जांपल है, इसी रिसेंट बात है, इसी लास्ट सेमेस्टर जो बीता है जून में, एमएससी 4th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट एक दिन रोते हुए मेरे पास आई। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, ये रो क्यों रही है, और उसने एमएससी 4th सेमेस्टर का डिसर्टेशन मेरे सुपरविजन में ज्वाइन किया। मैंने उसको बिठाया, पानी पिलाया, और उसके बाद पूछा प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा सर मेरे पिताजी नहीं है, मेरी पढ़ाई का खर्च मेरे भाई साहब उठाते हैं। आप सोच के देखो क्या सिचुएशन होगी। बच्ची रहने वाली जयपुर की है, पढ़ रही है उत्तराखंड में, घर से दूर है। उसको हॉस्टल्स के कुछ सीनियर्स ने यह समझा दिया कि तुम्हें नेट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पीएचडी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम इंडस्ट्री में चली जाओ। एंड शी वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन डूइंग पीएचडी। वो पीएचडी में इंटरेस्टेड थी, नेट करने में इंटरेस्टेड थी। तो उसको रोने का सिर्फ एक कारण था कि जो मैं चाहती हूं, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्या?
लोग मुझे ऐसा समझा रहे हैं कि पीएचडी करने में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, आप संभाल नहीं पाओगे, आप इंडस्ट्री में चले जाओ। ये सर्विस उसको वेब पर अवेलेबल नहीं होगी जो मैंने डायग्नोज किया, और डायग्नोज करके मैंने उसको आंसर देने की कोशिश की, पता नहीं गलत की सही, लेकिन वो उसको बहुत सही मानती है। मैंने उसको एक बात केवल कही, बेटा अगर पीएचडी करनी है तो विथ फेलोशिप करना, और फेलोशिप लेने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करो। मेरी एडवाइस सिर्फ एक एडवाइस है कि पहला काम आप नेट की प्रिपरेशन करिए, नेट को क्रैक करिए, फेलोशिप अचीव करिए, और अगर फेलोशिप अचीव करती हैं तो पीएचडी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप फेलोशिप अचीव नहीं कर पाती हैं तो फाइनेंशियली तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपको बाद में सिलेक्शंस में भी प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर होगा कि अगर आप कंपटीशन क्रैक ना कर पाए तो आप इंडस्ट्री में चले जाएं, लेकिन फर्स्ट डू योर इंटरेस्ट। बस ये 2 लाइन का जो मेरा आंसर था ना, वो बच्ची प्रसन्न हो गई। अब आप मुझे बताएं, ये काम आप सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने किया कोई बहुत बड़ा तीर चलाया, ऐसा नहीं, आप सब कर सकते हैं, करते होंगे कुछ लोग। क्या ये सर्विस वेब पर अवेलेबल है सर? नहीं सर। नहीं सर। तो अगर ये मेंटरिंग आप देंगे, निश्चित रूप से अगर आप 2 किताब 3 किताब 4 किताब पढ़ करके और उसकी समरी बना करके क्लास में लेके जाएंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे। हम कहते हैं मत डिटेल पढ़ाइए, अच्छे से आउटलाइन कॉन्सेप्ट बना के दे दीजिए, और क्लास में उसके बाद ये कह दीजिए कि इसका डिटेल वेब पे अवेलेबल है, बेटा जाके पढ़ लेना। उसको रिफर कर दीजिए। आपको पता है ना कि वेब पे क्या अवेलेबल है, जो वहां अवेलेबल नहीं है उसको डायग्नोज करिए, उसको लेके आइए, क्लास में डिलीवर करिए। जो वहां अवेलेबल है उसको आप भी रिफर कर दीजिए, आपको पता है वहीं पढ़ेगा, वो पढ़ने दीजिए उसको। मेरे ख्याल से डॉक्टर आयरीन और डॉक्टर रघुराज जी के क्वेश्चन का मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का एक अप्रोच मैंने आपके समक्ष रखा। डॉक्टर आयशा थी शायद, कुछ कह रही थी, उनका शायद प्रॉब्लम मिस हो गया था। डॉक्टर आयशा प्लीज। नहीं, मृणाल दास। करना चाहती हूँ Sir, I have one observation. जी बताएं। Sir, in our West Bengal, as money students are decreasing basically in humanities branches over the years. As money students are decreasing, number of students enrollment are decreasing in humanities subjects. Number of students enrollment is decreasing. Yes, in humanities branches specifically. In humanities branches. Yes. But the problem, I think major problem is the scope of opportunity in job is very limited, and all the subjects of humanities are quite knowledge based, not skill based. So students are moving. मैं कल ही वेब पर किसी को सुन रहा था। My students are shifting to the professional courses. Got it, Dr. Mridal, got your point. मैं वेब पर कल सुन रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री ने इंजीनियर्स बनाए, डॉक्टर्स बनाए, मैनेजर्स बनाए। जो आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग में, साइंसेस में, मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में, वहां लोग ज्यादा जा रहे हैं, ह्यूमनिटीज में नहीं जा रहे हैं। तो जो भी वक्ता थे, मैं नाम याद नहीं कर पाया, उनका कहना था कि हमने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स बनाए, लेकिन हमने गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए। हमने ह्यूमनिटीज नहीं पढ़ाई उनको, हमने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई। सर मेरा observation, not only humanities subjects, science subject, basic classical science like that, chemistry, physics, chemistry, mathematics, these subjects are enrollment of the students of these classical subjects are also decreasing.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। और कोई डॉक्टर मोहम्मद अंसारी है, वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से चैट में, जस्ट अ मिनट, दैट इज बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेड फील्ड्स। यस, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं, या सोसाइटी जो समझ रही है, स्टूडेंट जो समझ रहे हैं कि जॉब नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट को पढ़ के क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन बेसिकली। तो जॉब नहीं मिलेगा, बीइंग ए टीचर हमारी आपकी ड्यूटी ये है कि हम उनको इस बात के लिए भी कन्विंस करें कि जॉब क्रिएट भी की जा सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि जॉब पाना ही सब कुछ नहीं है। अगर सब लोग जॉब करेंगे तो लीड कौन करेगा सर सोसाइटी को? नतीजा आप लोग जानते हैं क्या हुआ? मैं जो बात बोल रहा था उन वक्ता की, कोई सम्मानित वक्ता थे, नाम नहीं याद है मुझे, हमने डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, मैनेजर्स बनाए, हमने गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए, हमने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई। नतीजा क्या हुआ? हमारी सोसाइटी मैकेनिकल होकर रह गई। वैल्यूज नहीं है हमारे पास, एथिक्स नहीं है हमारे पास, मॉरल्स नहीं है हमारे पास। हम डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर बन गए, मैनेजर बन गए, क्यों? इस लालच में कि जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैसा कमा लेंगे। अच्छा पैसा कमाने के बाद क्या यही अच्छी सोसाइटी है कि माता पिता वृद्धाश्रम में जाए और बच्चे अनाथाश्रम में? यही अच्छी सोसाइटी है? या तो अनाथाश्रम में जाते हैं या तो डे बोर्डिंग में जाते हैं। यही बनाना, यही अच्छी सोसाइटी होती है क्या? और वो डॉक्टर्स और वो इंजीनियर्स, अब ह्यूमनिटीज की बात हो गई, अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पर आता हूँ, मैथमेटिक्स पर आता हूँ। वो डॉक्टर्स और वो इंजीनियर्स क्या बन पाते अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बेसिक रिसर्चेज ना होती? केवल अप्लाइड रिसर्चेज की जिनकी बात हम करते हैं, डॉक्टर बना देंगे, वो डॉक्टर दवा कैसे देगा अगर दवा की डिस्कवरी ही नहीं होगी? वो इंजीनियर ब्रिज कैसे बनाएगा अगर ब्रिज बनाने की टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं होगी? वो कौन करता है सर? ठीक है, पैसे कम मिलते हैं, एमएससी फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स करने वाले को पैसे कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू बीटेक या एमटेक वाले के। लेकिन क्या इन सबके बिना, सबका मैं कहता कि वो बेकार के लोग हैं, वो भी काम के हैं, ये भी काम के हैं। जब तक आप सबको बैलेंस नहीं करेंगे, आप एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। तो बीइंग ए टीचर, हमारा आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, ये इसके लिए स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को कन्विंस करना, ये किसका काम है? ये कौन बताएगा सर? पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताते। वो पॉलिटिकल लीडर्स केवल एक बात पर काम करते हैं, दे आर फोकस्ड ओनली ऑन द वोट बैंक। कब कहां आपको कास्ट में लड़ा देना है, कब कहां आपको रिलीजन में लड़ा देना है, इस पर बात करते हैं। वो धर्म की बात करते हैं तो कौन से धर्म की बात करते हैं? रिलीजन की। धर्म का जो असली मीनिंग है, धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस पर कोई पॉलिटिकल लीडर बात करता है क्या? नहीं। तो बीइंग एकेडमिक लीडर, ये हमारा आपका ड्यूटी है, हमारा आपका धर्म है। हम और आप स्टूडेंट्स को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएंगे तो वही स्टूडेंट फिर सोसाइटी का पार्ट हो जाता है, वो सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी। नो डाउट जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं, सब फेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी केवल और केवल टीचर्स के पास है सर, और किसी के पास नहीं है। ओनली एकेडमिक लीडर्स कैन डू। शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, निर्माण और विनाश दोनों उसकी गोद में पलते हैं। आचार्य चाणक्य। आप चाहें तो देश को बना दें, आप चाहें तो देश को बिगाड़ दें। ऑब्वियसली इसमें आप में से कुछ लोगों ने एक पॉइंट रखा, मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस। केवल मैनेजमेंट नहीं सर, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन पर चले जाइए, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिकल लीडरशिप का इन्फ्लुएंस भी आता है और आएगा, सदा आता रहा है। तो अगर आप उनके प्रेशर में ढल गए तो फिर आप किस बात के एकेडमिक लीडर हैं?
फिर आप किस बात के एकेडमिक लीडर? अगर आप वाइस चांसलर बने, मैं नहीं हूं, बहुत छोटा हूं उस पोजीशन पर जाने के लिए अभी, अगर आप वाइस चांसलर बने और आप पॉलिटिकल लीडरशिप के ही प्रेशर में काम करते रहे इस बात से डर के कि कल को हमारी वाइस चांसलरशिप चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट ट्रांसफॉर्म द इंस्टीट्यूशन, यू कांट ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। आप एकेडमिक लीडर हुए नहीं सर, आप तो फॉलोअर हो गए। पोजीशन भले ही आपको वाइस चांसलर की दे दी गई, आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, अगर आप मैनेजमेंट के इंटरफेरेंस में आ गए, मैनेजमेंट के प्रेशर में आ गए, तो आप लीडर कहाँ हो गए? आप तो फॉलोअर हो गए ना सर। तो बीइंग एकेडमिक लीडर, आपको उस मैनेजमेंट को, उस ब्यूरोक्रेसी को ये समझाना पड़ेगा कि इस काम को कर देने से, जैसा आप बोल रहे हैं, इसको कर देने से ये नुकसान होने वाला है। आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई गढ़वाल यूनिवर्सिटी से तो नहीं है? कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता था, इसलिए पूछा मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूं, मैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी को बिलोंग करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी में सेपरेट एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकली पेपर पर तो है, प्रैक्टिकली नहीं करता। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रीवियस हेड थे, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रीवियस हेड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक दिन डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके ये निकालते हैं कि जो कोर्स की फीस है मास्टर प्रोग्राम में, उसको बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम का स्टाफ है हमारे पास, नॉन टीचिंग स्टाफ हमारा, वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में अपॉइंट हुआ था, उसकी सैलरी के लिए वो फंड फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो अमाउंट को, तो दैट फी शुड बी इंक्रीज। संयोग से या दुर्योग से, दोनों कह सकते हैं आप, वो हेड साहब चले गए, रिटायर हो गए, नए हेड साहब आ गए। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दिन लेटर भेजा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आ जाएं डिस्कशन के लिए कि फीस कितनी बढ़ानी है और कैसे बढ़ानी। गलती से हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे पूछ लिया कि सर आप उस डिसिप्लिन को बिलोंग करते हो, आप भी चलो। मैं चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके प्रीवियस एचओडी एग्री करके गए हैं कि दिस फीस शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 5,000 to 10,000 पर सेमेस्टर। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं उनकी बात मान लेता क्योंकि हमारे प्रीवियस एचओडी एग्री करके गए थे। दूसरा ऑप्शन था, मैंने कहा सर अगर आपको इस डिसीजन पर कंटिन्यू करना है तो आपने मुझे बुला के गलती कर दी है, मैं एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा फिर हम सैलरी कहां से देंगे? यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी इंटरनल रिसीप्ट होती है, आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बोले अगर हम फीस बढ़ा दें तो आपका क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान नहीं है सर, कोई नुकसान नहीं है मेरा, आपका नुकसान है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा अगर एमएससी बॉटनी का बच्चा 2,500 फीस देता है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा 2,500 फीस देता है, एमएससी जूलॉजी का बच्चा 2,500 फीस देता है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का बच्चा आज की डेट में 7,500 देता है, 5,000 एक्स्ट्रा देता है। और अगर आपने 5,000 और बढ़ाई तो वो 12,500 देगा। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या इस 12,500 के एक्सचेंज में, यानी 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा के एक्सचेंज में, आप उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये एक्स्ट्रा तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टाफ की सैलरी देनी है। मैंने कहा सर सोने मुर्गी अगर सोने का अंडा देती है तो एक ही दिन में लेना चाहेंगे या अलग अलग? बोले मतलब क्या है आपका? मैंने कहा अगर कोई बच्चा विदाउट एनी एडिशनल फैसिलिटी आप उससे 10,000 रुपीज पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा मांगेंगे, एडमिशन लेना बंद हो जाएगा। तो जो आपको 5,000 की 10,000 बढ़ाने की पड़ी है वो 5 भी नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा।
इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने फीस नहीं बढ़ाई। दो कि उन्होंने मुझे शो नहीं किया उस मीटिंग में, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम तो उसी पे एग्री करेंगे, बट बाद में मुझे पता चला कि वो फीस उन्होंने नहीं बढ़ाई और उस स्टाफ की सैलरी जो है वो यूनिवर्सिटी के किसी और अकाउंट से अटैच कर दी। तो आपको समझाना पड़ेगा सर, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा, मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं कि बीइंग एकेडमिक लीडर, बीइंग ए टीचर, बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बीइंग डीन ऑफ द स्कूल, बीइंग द वाइस चांसलर, आपको मैनेजमेंट के सामने, आपको ब्यूरोक्रेसी के सामने, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने अपनी बातों को कन्विंसिंग तरीके से रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अड़ जाइए, कन्विंसिंग तरीके से रखिए। इस बात से मत डरिए कि कल को मैं हेड नहीं रहूंगा। अरे नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। टीचर की जॉब तो हमको, आपको, सबको मिल गई है, उसको कोई लेने वाला नहीं है ना अभी फिलहाल। हो सकता है 2-4 साल प्रमोशन डिले हो जाए, हो जाने दीजिए। प्रमोशन भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उससे सोसाइटी का कोई लॉस होने जा रहा है, या इवन हो सकता है जैसा मैंने इंस्टीट्यूशन शेयर किया कि अल्टीमेट लॉस तो यूनिवर्सिटी का ही होता, तो उस लॉस से बचाना किसका काम है? फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार थोड़ी ना देख रहा है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। इवन वाइस चांसलर भी नहीं देखता, देखना आपको पड़ेगा। प्रैक्टिकल की लेबोरेटरी में कौन सा केमिकल है, कौन सा नहीं है, आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वाइस चांसलर देखने नहीं आता सर, आप देखते हो। और स्टूडेंट्स के लिए जवाबदेह भी आप ही होते हो। वो रोज आपसे पूछते हैं सर आपने पढ़ाया था, इसको करके कब दिखाओगे। आई थिंक मैंने आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुछ अप्रोचेज आपके सामने रखे। अगर आपको भी इसमें से कुछ पसंद आ गया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, किसी का और कुछ है? मिस्टर अजय सिंह हैज रेज्ड हैंड। अजय सिंह जी। Sir, the problem with assistant professor is that we have to manage the two-pronged strategy. One is with the career benefit. Even after 5 years or 8 years, 10 years, 15 years of service, we are still in the same rudder boat. So that is one problem. The thing is the overburden of the workload. ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि आप 8, 10 साल, 12 साल से एक ही पोजीशन पर हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ? Yes sir, yes sir. ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा डिस्करेज करता है, लेकिन फिर भी आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। टीचर शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। आप अपनी बात मत करिए सर, मेरी कर लीजिए, मैं 12 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूं। ठीक है? Yes sir, yes sir. लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी की कोई भी असाइनमेंट या कोई भी ड्यूटी मुझे मिलती है, मैं डिनाई नहीं करता। हाँ, एक कंडीशन जरूर लगाता हूं कि वो असाइनमेंट जो है वो टीचर के लेवल का होना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है जिसको टीचर ही करता है और टीचर ही कर सकता है तो मैं करने को तैयार हूं। आप मुझे अगर डेटा एंट्री के काम में लगाएंगे या डेटा कंपाइलेशन के काम में लगाएंगे, जो आपका क्लर्कियल स्टाफ कर सकता है, वो मैं नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखते हुए किसी भी इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ में, उसके बेटरमेंट के लिए काम करना टीचर की ड्यूटी है, आपको करना चाहिए। प्रमोशन न होने से थोड़ा सा दुख होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब काम छोड़ के बैठ जाएं। और बैठ जाएंगे तो उससे 2 नुकसान होंगे। केवल इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन का भी होगा, आपका भी होगा। और ये दोनों तो छोटे नुकसान हैं। इंस्टीट्यूशन के 2-4 पेपर नहीं छपेंगे, आपके नहीं छपेंगे, आप 2-4 जगह कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने नहीं जाएंगे, यही नुकसान है ना आपका।
लेकिन आप अगर बिना मन के टीचिंग करना है तो उससे कौन कौन प्रभावित होगा? स्टूडेंट और इनडायरेक्टली सोसाइटी। ठीक है सर? Yes, sir. Yes, वो sir. प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेट नुकसान सोसाइटी का नहीं होना चाहिए, और वो भी क्यों? चंद रुपयों के लिए। फाइनेंस किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन चंद रुपयों के लिए आपका प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन तो नहीं किया ना सर किसी ने। सैलरी तो मिलती है, Yes, sir. ऐसा तो नहीं है कि मिलनी बंद हो गई। और जो प्रमोशन ड्यू है वो भी मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। ऑब्वियसली तमाम रेगुलेशंस हैं जो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को प्रमोशन टाइम पर करनी चाहिए, वो उसके लिए टाइम बाउंड है। क्या आपने प्रयास किया? आपने एप्लीकेशन सबमिट की? आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने प्रिंसिपल से, अपने वाइस चांसलर से मीटिंग की? करना चाहिए ना सर। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मीटिंग की होगी तो शायद उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई होगी। अब फिर आपको ये डिसाइड करना है कि अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उसको समझिए, और अगर नहीं जेन्युइन है तो आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करिए। प्रेशर क्रिएट करने के भी तरीके हैं, मैं तो इस पर भी बात कर लेता हूं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, 4 से 10 20 टीचर चले जाइए एक साथ प्रिंसिपल के केबिन में, वाइस चांसलर के केबिन में, हिल जाएंगे, कोई भी हो। अगर आप जेन्युइन प्रॉब्लम लेके गए हैं तो बिना वजह के प्रेशर मत बनाइएगा, ठीक है? कोई भी हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडरशिप पोजीशन पर बैठा व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा व्यक्ति जानबूझ करके कभी डिले करता है। 1-2% में कहीं लोग हैं जिनको दूसरे के दुख से सुख मिलता है, वो एक्सेप्शंस है, वो अलग बात है, बट ज्यादातर लोग उसको सॉल्व करने की ही कोशिश करते हैं। और उसका भी कारण है। एक कारण तो ये हो सकता है कि लीडरशिप पर, चेयर पर बैठा व्यक्ति बड़ा अच्छा व्यक्ति हो, उसके इंटेंशंस बड़े अच्छे हों, इसलिए वो आपके, मैंने पहले ही कहा कि लीडर की क्वालिटी है कि वो सर्वेंट लीडरशिप की प्रिंसिपल में विश्वास करे, और वो हमेशा अपने टीम मेंबर्स के प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दे, उसके बेटरमेंट के लिए कार्य करे। अगर वो नहीं करता है तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आपको भी उसको समझना चाहिए। ठीक है? 1-2% लोग हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि जिनको दूसरे के दुख से सुख मिलता है, वो जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं। तो उसके भी कई तरीके हैं। या तो आप उनको अवॉइड कर देंगे, कितना दिन रहेंगे, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल। अगर वो नहीं पॉसिबल है, नहीं सिचुएशन है, तो थोड़ा सा आपको भी कमर कस लेनी होगी, कुछ थोड़ा लेटर वेटर लिखना पड़ेगा। आप सक्षम है, टीचर्स आर ऑलवेज रिसोर्सफुल, ऐसा नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं सितारी राम जी? ऑडिबल नहीं है सर आप? Sir, government engage many time of many days of 1 year in election duty or other duty than teaching. My example, 57 days I engage in election duty. When I return back in our class, I have 2 pressures. I complete my course in short time. Yeah, I try to in my class student to content to which type of understand. ठीक है सितारी राम जी, आई गॉट योर पॉइंट। इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर चुका हूं, और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपके लेवल का है वो ये है, आपने 57 डेज कहा सर,
क्या एक्चुअली आप 57 डेज इन्वॉल्व रहे? हाथरस डिस्ट्रिक्ट सर। कौन सा इलेक्शन था? सर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। आपकी ड्यूटी किस चीज की लगी थी? आप ऑडिबल नहीं है। डिपार्टमेंट सर, और some my colleague are duty in इलेक्शन में आपका FST रोल क्या था? इलेक्शन में आपका रोल क्या था? FST team sir, where cash go on election duty, cash recovery, cash check करना कि cash मतलब over cash more than 1 lakh cash are not moved here and there. ठीक है, मैं समझ गया। तो आप वाकई 57 डेज तक इन्वॉल्व थे, एंगेज थे। तो एक बात तो ये मान लीजिए कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी जॉब जो आपको मिली हो, जो आपको असाइन हुई हो, इसको एंजॉय करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, आपको शिकायतें कम हो जाएंगी। एक तरीका तो ये है, मैं आ रहा हूं, जो आप कहना चाहते हैं मैं उस पर भी आ रहा हूं। एक तरीका तो ये है। दूसरा बात यह है कि गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि टीचर्स को दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज न किया। ठीक है, आपकी इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, एक बड़ा कॉमन सा लेटर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं और आप जिसको चाहें, जिस भी ह्यूमन रिसोर्स को चाहें, जिस भी फिजिकल रिसोर्स को चाहें, पूरे डिस्ट्रिक्ट से आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको इन्वॉल्व न करे, इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। पहला ये कि आपकी जो एकेडमिक लीडरशिप है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या उनके फॉलोअर्स को, उनके एम्प्लॉइज को ये कन्विंस कर सके कि भैया टीचर्स के बिना भी आपका काम चल जाएगा, और अगर आप टीचर्स को वहां एंगेज करेंगे तो आपसे ज्यादा जरूरी काम का नुकसान हो जाएगा। अगर ये कन्विंस करने में वो एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से भी समझ लेते हैं। या तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज टीचर्स को पूछा। आप उनकी लीस्ट प्रायोरिटी में होते हो सर। पहले वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को पूछते हैं, फिर बैंक वालों को पूछते हैं, LIC वालों को पूछते हैं, सबसे लास्ट में कॉलेज टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर्स का नंबर आता है। ठीक है, और वो भी मुझे लगता है सबको नहीं लगाते होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोगों की भी ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब हम जूनियर थे, मेरे ख्याल से 5 साल 7 साल की सर्विस तक हमारी ड्यूटीज लगी, उसके बाद उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। अब भी वो जूनियर्स को लगाते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। ठीक है, तो वो उनका पार्ट है, उनकी भी प्रॉब्लम है कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा। कोई अल्टरनेट तरीका है क्या? और अगर होता है तो निश्चित रूप से वो आपको टच नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, ब्रजेश सिंह जी हाँ सर, कुछ कह रहा है। हाँ जी सर, एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को ही महत्व दिया जाता है, जो सीनियरिटी उसी के हिसाब से लीडरशिप दी जाती है। तो ये जो व्यवस्था होती है, कहीं कहीं इसको ओवरलुक करके जो भी सिस्टम है वो किसी अन्य को बना देता है, लीडर दे देता है, जो पूरी समस्या, जितनी समस्या आपने चर्चा की, सभी समस्या का कारण वो बन जाता है। इससे कैसे निपटा जाए सर इस व्यवस्था से? अब तक जितने आपने समस्याओं की चर्चा की, सारी समस्या की जड़ वो बन जाता है, क्योंकि नेतृत्व का उसमें गुण होता नहीं, नेतृत्व करता नहीं, अपने फायदे के लिए वो जो सिस्टम उससे मिलकर के पूरी व्यवस्था को परेशान करता रहता है।
ये चैलेंज है सर, ये बहुत बड़ा ये चैलेंज चैलेंज है। मेरी स्लाइड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि जो लीडरशिप होती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वो ट्रेंड नहीं होती है। ठीक है, कई बार तो जो सीनियरिटी में आ रहा है, हियरार्की में आ रहा है, उसको पोजीशन मिल गई और वो खुद भी लीडरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है या कॉम्पिटेंट एनफ नहीं है, जी जी तो प्रॉब्लम होती है। जी या कई बार एडमिनिस्ट्रेशन अपने हित हियरार्की को ओवरलुक करके किसी जूनियर आदमी को पोजीशन पर बिठा देता है, वहां भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ भी प्रॉब्लम आती है सर। वहां भी प्रॉब्लम होती है। Sir, तो जी तो सर क्या इंस्टीट्यूशनल this is a लीडरशिप general. ये बेहतर होगी या वो कि जो व्यक्ति सक्षम है डेमोक्रेटिक लीडरशिप वहाँ फॉलो किया जाए तो बेहतर होता है? सर फिलहाल जो ऑर्डिनेंस है उसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप तो नहीं है कॉलेज और, लेकिन कॉलेज में है, क्यों नहीं है? आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो सीनियर मोस्ट टीचर तो नहीं होता। होता है सर, हम लोग क्या तो सीनियर मोस्ट, हम लोग कॉलेज के ही तो वहाँ तो सीनियर मोस्ट होता है, लेकिन सिस्टम ओवरलुक करके किसी कहाँ और से को है? बना देता ब्रजेश है। जी मैं आप समझ- नहीं है। ये समय जब भेसर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से कॉलेज है हमारा, मुरादाबाद में कॉलेज है। यूपी में मेरे ख्याल से यूपी हायर एजुकेशन कमीशन प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट अलग से करता है। जी सर, जी सर। तो उसमें जी से सर। ऐसा था जो लोग आए थे ज्वाइन करने के बाद रिटर्न चले गए, हाँ, वो अलग बात है, वो अलग different मामला है। story। जी सर मैं जी, आ रहा हूँ, लेकिन आपकी बात पे आ रहा हूँ, वो डिफरेंट स्टोरी है। यानी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिए हैं, प्रिंसिपल्स जी, जो जी। हैं वो एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, और ऑब्वियसली जो सिलेक्शन कमेटी होती है उनके अंदर वो लीडरशिप कॉम्पिटेंसी और लीडरशिप स्किल्स को परखती है। जी जी सर, हो जी। सकता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो, कुछ लोग अच्छे ना आते हो, कुछ लोग अच्छे आते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, दोनों बातें हैं। एक्टिंग वो लीडरशिप की बात की जाती है सर, वो जो सिस्टम से वो अलग बात है, जो एक्टिंग जो यहाँ मैनेजमेंट करता है इसकी बात हो रही है। मैं आ रहा हूँ सर। अब एक्टिंग लीडरशिप की जहां तक बात है, एक्टिंग लीडरशिप किसी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं आती, ठीक है ना? तो वहां जो मैनेजमेंट होता है या जो गवर्नमेंट होती है उसके पास भी समस्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस वाला जो गया था सेलेक्ट होके वो रहा नहीं, तो आप में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो कुछ तो तरीका अपनाएंगे ना सर। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से किसी को भी उठा के बना देंगे तो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है? यही समस्या तो आती है। प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं आ रहा हूँ, रूट काज वो नहीं है कि एक्टिंग प्रिंसिपल अच्छा लीडर नहीं होता, ये रूट काज नहीं है। रूट काज ये है कि टीचर्स को लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं दी गई। अगर हम अपने सारे टीचर्स को लीडरशिप की ट्रेनिंग दे दें तो उनमें से कोई भी एक्टिंग प्रिंसिपल हो जाए, कोई भी एक्टिंग वाइस चांसलर हो जाए, वो अच्छा लीडर होगा। जी जी, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, 100% कभी नहीं होता। जी पॉसिबिलिटी। लेकिन अब मैं आ रहा हूं, अंडर NEP 2020 गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नोन एज NFLP, नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम। नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए ये आपका जो जिस प्रोग्राम के तहत आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 2023 में लॉन्च हुआ है, उस प्रोग्राम के तहत ये आपके शॉर्ट टर्म फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंडक्शन प्रोग्राम है, रिफ्रेशर कोर्स है, NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन है। इसके अलावा 2 और प्रोग्राम है, 2 क्या 3-4 है मेरे ख्याल से। उसमें एक है नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम्स, उसमें एक है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रिंसिपल्स, उसमें एक है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वाइस चांसलर्स, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो वो सबके लिए प्रोविजंस हैं। खास करके NFLP जो है वो टीचर्स के लिए है। टीचर्स को लीडरशिप के लिए ट्रेन करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और उस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए केवल IITs और IIMs को सेलेक्ट किया गया है। मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, लगभग हर महीने UGC की तरफ से
और उन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपके प्रिंसिपल को और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को एक लेटर जाता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट 2 फैकल्टी मेंबर्स को नॉमिनेट करें कि वो जाकर के इस तरह के प्रोग्राम्स को अटेंड करें। और अगर ये प्रोग्राम 2023 से तो कंटिन्यू चल रहा है, अगर आगे भी कंटिन्यू रहा 1-2 साल और, तो निश्चित रूप से उनका टारगेट है कि लगभग 50% टीचर्स को हम लीडरशिप प्रोग्राम में ट्रेंड कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का, किसी भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का जो रिजल्ट होगा, आउटपुट जो होगा 100% होगा, नहीं होगा, लेकिन 50% का अगर 50% भी रिजल्ट आ गया तो टोटल पॉपुलेशन का 25% तो ट्रेंड हो ही जाएगा ना सर। तो आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगी मेरे ख्याल से। सर आई वुड लाइक टू, इसके अलावा एक मिनट ऐड ऑन करने दीजिए मुझे। इसके अलावा जो एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें भी एकेडमिक लीडरशिप पर 2 लेक्चर कम से कम होते हैं हर प्रोग्राम। आप जिस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, यहां भी एकेडमिक लीडरशिप प्रोग्राम रखा गया इसीलिए, ठीक है। तो लगभग हर प्रोग्राम में, इंडक्शन कोर्स में आप जाएं, वहां भी एकेडमिक लीडरशिप पर 12 सेशन रखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं, गवर्नमेंट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, हम टीचर्स भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे। थोड़ा सा हमें और लगने की जरूरत है, निश्चित रूप से समय लगेगा, किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, अच्छा होगा। जी जंग बहादुर जी कुछ कह रहे हैं। सर वन जनरल क्वेश्चन सर। जी सर विद दीज प्रोग्राम्स जो है कंडक्टेड बाय यूजीसी, एमएमटीसी, टीटीसी, सर आर वी एलिजिबल टू ओपन स्कूल्स और कॉलेजेस इन आवर मतलब एनी प्लेस सर, मतलब आर वी एलिजिबल टू open colleges? Are we eligible to open colleges, any colleges, मतलब art, science like that? मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्यों ओपन होना चाहते हैं ओपन कोर्सेज के लिए? नहीं, कॉलेजेस नहीं, आप अभी जहां जॉब कर रहे हैं वो कैसा कॉलेज है? नहीं सर, आफ्टर रिटायरमेंट आई एम सेइंग। आफ्टर रिटायरमेंट आप ओपन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें काम करना चाहते हैं, यही तो? No sir, because we are undergoing these programs. हाँ। Suppose if anyone wants to open schools, they have to have B.Ed. M.Ed. degrees. हाँ, standard जो protocol है। ठीक है। Suppose if you want to open colleges, what are the preconditions is required for this? नहीं, MFLP मालवी मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या एकेडमिक लीडरशिप जो है वो आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। तो आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो ओपन कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज, खास करके इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए नहीं, स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए वहां टीचर होने के लिए भी बीएड करना जरूरी है। तो आप कॉलेज को मैनेजर तो आप हो ही सकते हैं, किसी ने मना नहीं, आप टीचर और प्रिंसिपल नहीं हो सकते। ओके सर, आप कॉलेज ओपन कर लीजिए, कोई भी कॉलेज ओपन कर लीजिए, आप मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन बन जाइए, किसने मना किया आपको? उसके लिए एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है या सोसाइटी बनानी पड़ती है, उसके चेयरमैन अगर आप हो जाते हैं तो आप हो सकते हैं, आप कॉलेज ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टीचर और प्रिंसिपल नहीं हो सकते। उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड होना ही चाहिए, या कुछ जगहों पर शायद उन्होंने डीएलएड और क्या क्या कुछ और कोर्सेज को मान्यता दे रखी है। ओके जी, आपके क्वेरीज अगर थोड़े कम हो गए हों तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। कंटेम्परेरी इश्यूज आप लोगों ने हाईलाइट किए, थोड़े बहुत मैंने भी लिखे हैं। कुछ चीजें आप लोगों ने मेंशन कर दी हैं, कुछ चीजें नहीं मेंशन की हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मैडम ने मेंशन कर दिया, आयरिन ने। पॉलिसी शिफ्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये बड़ा शिफ्ट था, ये आपने मेंशन नहीं किया कहीं से, ठीक है। पॉलिसी शिफ्ट एनईपी 2020,
सर यूजीसी का रेगुलेशन आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, यूजी और पीजी का ऑर्डिनेंस आ गया, साल में 2 बार एडमिशन करने हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन देना है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंडेड प्रोग्राम एक्सटेंडेड कोर्स का ऑप्शन देना है, टाइम पीरियड को कम करके भी सर्टिफिकेट दे देना है, सर्टिफिकेट देना है, डिप्लोमा देना है, डिग्री देनी है, डिग्री विद रिसर्च देनी है, पीजी डिप्लोमा देना है, तमाम काम जो है वो आपके बढ़ गए हैं। पहले आप अंडर ग्रेजुएट में 3 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एनुअल प्रोग्राम होता था, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा हर सब्जेक्ट में 3 पेपर पढ़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब उसमें कोर सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, इलेक्टिव है, कोर है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वो अलग से एक लेक्चर हो जाएगा अगर मैं उस पर बात करूंगा। इसके अलावा आपके जो क्रेडिट्स हैं वो एकोमुलेट होने हैं, उनको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो एनईपी के थ्रू, इतना ही नहीं है और भी बहुत कुछ है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं, जो यूनिडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस थे उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो कॉलेजेस हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना है, आइदर उनको यूनिवर्सिटी में मर्ज कर देना है या उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का रैंक दे देना है, ठीक है। डिक्लाइनिंग रिसर्च आउटपुट, हमारा रिसर्च आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हम फॉलोअर बनते जा रहे हैं, हम लीड नहीं कर रहे हैं, हम इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई है कोविड की वजह से, आफ्टर कोविड डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से मेंटल प्रेशर बहुत पड़ रहा है, तो लोगों की मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही है। एनईपी कह रही है कि डिफरेंट लैंग्वेज को प्रमोट करना है, खास करके प्राइमरी सेक्शन में, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ जा रही है, ठीक है, उनकी हेल्थ डाइवर्सिटी बढ़ गई, उनकी स्टेट वाइज डाइवर्सिटी अलग अलग हो गई है। आपके ऊपर पब्लिकेशन का प्रेशर है, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक्रेडिटेशन का, रैंकिंग का प्रेशर है, उसके लिए काम करना है। फैकल्टी का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, वो भी एक प्रेशर है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आप लोगों ने बात कर लिया। तो ये सारे प्रेशर जो हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आते ही आते हैं, जो लीडरशिप को फेस करना पड़ता है। ये एनईपी की बातें मैंने पहले ही कह दी कि क्या क्या है, समय कम है, आगे चलते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज को फेस करने के लिए चैलेंजेस हैं। आप देखिए, आपने जो बात कही डॉक्टर साहब, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर लीडर्स, ये यूजीसी भी रिकॉग्नाइज करती है, ये है अभी, इसीलिए प्रयास चल रहे हैं। जैसा मैंने एनएफएलपी में कहा, एकेडमिक लीडरशिप में कहा, आपके जो है एनईपी ओरिएंटेशन में कहा, ठीक है। बैलेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचिंग रोल, नेविगेशन स्टेक होल्डर्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, बजट लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मैनेजमेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज इन इनोवेशन। तो सीनियर फैकल्टी हैं जो पुराने हो जाते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल, वो कहते हैं जी हम कोई इनोवेशन अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। सवाल ये है, इसमें से कुछ चैलेंजेस कोविड की वजह से निकल के आए हैं, कुछ एनईपी की वजह से एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कैसे इनको ओवरकम कर पाएंगे आप, लीडरशिप क्या कर सकती है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को प्रमोट करिए, अकेले दम पर कुछ नहीं होता सर, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को प्रमोट करिए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को प्रमोट करिए। लेकिन डेमोक्रेटिक लीडरशिप काम तो तब करेगी ना जब सब लीडर होंगे। तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए। अकेला कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सबको इंस्पायर कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। कहते हैं हम होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है ग्राउंड पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करने की टेंडेंसी भी लोगों में होनी चाहिए, और मेंटरशिप और सक्सेशन प्लानिंग भी होनी चाहिए टीचर्स के स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर फैकल्टी की जूनियर फैकल्टी के साथ, वाइस चांसलर की टीचर्स के साथ, डीन्स के साथ, हेड्स के साथ, प्रिंसिपल की सिमिलरली, ठीक है ना। तो ये सब स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू आप ओवरकम कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंक्लूड कर देते हैं सेशन को। एकेडमिक लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्म कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में। मैडम का जो सवाल था, वेब बेस्ड कंटेंट को प्रीफर कर रहे हैं बच्चे, आपके क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप अपने सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करिए। खाली इंस्टीट्यूशन रहेगा, कोई नहीं आने वाला। और अगर आपकी लीडरशिप विजनरी है तो विजनरी लीडरशिप फोस्टर्स ग्रोथ, इनोवेशन एंड रेलेवेंस। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way। ये जॉन मैक्सवेल का स्टेटमेंट है,
जो आप लोग ऑलरेडी कह चुके हैं। और एक बात मैं और ऐड ऑन करके इसके बाद आप सबका धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे बड़ी तन्मयता के साथ सुना। वो बात ये है कि अगर सब कुछ वेब पर अवेलेबल था सर, 166 लोग इस मीटिंग में अवेलेबल हैं और पिछले 90 मिनट से वो मुझे सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि सब कुछ वेब पे अवेलेबल नहीं है सर। और Thank you, sir. मैं एक सेक्रेट का खुलासा Right, sir. Right, sir. एक मिनट, मैं एक सेक्रेट का खुलासा कर देता हूं। वो सेक्रेट ये है कि आज के लेक्चर का जो प्रिपरेशन है वो मैंने एआई के थ्रू की है। इसका मतलब एज ए टीचर आप भी टूल्स को, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एआई टूल्स का जितना अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं, स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट एआई को यूज करके सेम राइटअप या सेम तरह का मैटर वो नहीं जनरेट कर सकता जो आप कर सकते हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअल का जो लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, वो स्टूडेंट के पास नहीं है सर। ठीक है। और अंत में एक कोट के साथ मैं खत्म करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट रेंगे तो आपको चलना पड़ेगा। इफ यू वांट योर स्टूडेंट टू वॉक, if you want your student to crawl, you have to walk. If you want your student to walk, you have to run. And if you want your students to run, you have to fly. तो आपको फ्लाई करना पड़ेगा सर, तब आपके स्टूडेंट्स रन करेंगे। अदरवाइज वो वेब बेस्ड कंटेंट पर ही जाएंगे और कॉलेज में नहीं आने वाले। ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है एनईपी में। 5 साल में पूरा करेगा वो, 7 साल में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेगा। क्रेडिट उसके डिपॉजिट होते जाएंगे। अब वो बात नहीं रही कि सेमेस्टर में 20 क्रेडिट नहीं मिला तो फेल हो जाएगा। नहीं होगा जी। वो 20 में 10 क्रेडिट पाएगा, 10 क्रेडिट अगले सेमेस्टर में पूरा करेगा। एक्सटेंडेड प्रोग्राम के तहत 3 साल के प्रोग्राम को 4 साल में पूरा करेगा। और उसकी मर्जी होगी तो 3 साल के बजाय कहेगा मुझे 2.5 साल में 120 क्रेडिट दो, मुझे यूजी की डिग्री चाहिए। आपको देनी है, क्योंकि यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ग्लोबल स्टैंडर्ड पर आपको कंपीट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने। आप ही की बात क्यों सुने? क्योंकि सोसाइटी ने आपको टीचर बनाया है। एकेडमिक लीडरशिप की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप जैसा चाहेंगे सोसाइटी वैसी बनेगी, सोसाइटी जैसी चाहेगी वैसा आप नहीं बनेंगे सर। ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आई होप आई एम ऑन टाइम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. You have delivered very good content. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. 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 विजय सर नमस्कार। नमस्कार सर। मिर्जापुर नरेश। जी सर। कॉलेज में आए सर।
Thank you, sir.